Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are well and safe at your home. So, yesterday, what we discussed about chapter number 1 as revision. So, I hope you all are studied well for PA1 exams. So, I will give extra MCQ questions in the last for chapter number 1 and 2 both. Okay, today we are going to see about chapter number 2 revision. Okay, you know what is chapter number 2? Chapter number 2 is the Northern Mountains. Before we start our chapter, we will see today's thought of the day and activity. Okay. So today's thought of the day is hope but never expect. इसका मीनिंग क्या है? हमको होप करना है जो नेक्स्ट क्या आने वाला है उसके लिए अच्छा ही होगा, ऐसा होप करना है, लेकिन वही होना है ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है, ऐसा मन में जो आशा नहीं रखना है। इससे हमको दुख हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा तो हमको दुख हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? होप करना है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। ओके, सो टुडेज activity is, I have told you that we are going to have 2 marks of GK questions, 2 marks of current affairs questions. So here you can see some current affair questions. Two questions I will make you to understand, and you have to search in internet. You have to get new current affairs from newspapers, in TV also. Okay, so today I will give you 2 questions of GK, 2 question and answer of current affairs. Okay, yesterday we had done 2, today also, and day after tomorrow, day after tomorrow, like that 2 we will complete. First one, what day of the prevention of child abuse is observed on which date? जो इसका मीनिंग क्या है? जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, जो चाइल्ड को कोई भी तरह का बैड मैनर से यूज़ करते हैं, उसको प्रिवेंशन करने के लिए जो उसको जो बैड मैनर से हैंडल करता है चाइल्ड को, उसको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ऑब्जर्व एक दिन जो वर्ल्ड डे ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? कौन से डेट में ये ऑब्जर्व किया जाएगा? ये है नवंबर 19 को प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ डे है। ओके, जो अब्यूज़ करता है चाइल्ड को, उसको बचाने के लिए मूवमेंट किया हुआ है। ओके, इट इज़ ऑन November 19th. So next question is, which country has successfully sent 13 satellites from a single rocket? जो एक ही रॉकेट में पूरा 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो सेंड किया है, वो कौन सा कंट्री है? वो है चाइना। चाइना जो है वो 13 सैटेलाइट को एक ही बार में, एक ही रॉकेट में लॉन्च किया था। ओके, सो इट इज़ the 2 questions, GK questions, current affairs questions, that you have to see properly, and you have to collect more information about current affairs. Okay, so in first chapter we completed our revision part. Then you have to study MCQ questions, fill in the blanks, write true or false, match the columns, answer the following. If पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो अंदर का जो ये क्विज जोन का, राइटिंग जोन का किसी पार्ट में भी MCQ क्वेश्चंस
आएगा. ओके, आपको अच्छे से रीड करना है. अंडरस्टूड? ओके, सो आई हैव wrote some extra MCQ questions from chapter 1. You have to study well. Okay, first one, Rajasthan is in the dash side. Which side? No, Rajasthan in India in the west side. And in which sea Lakshadweep Islands lies? कहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है? वो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है. एंड थर्ड वन, गोवा लाइज बिटवीन. गोवा स्टेट है, वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के जो बीच में गोवा आता है. एंड इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आपको पता है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड विच कंट्री इज़ नॉट अवर नेबरिंग कंट्री? दैट इज़ कोरिया. चाइना, भूटान, पाकिस्तान, these 3 are our neighboring countries. So इन दिया हुआ ऑप्शन में जो कोरिया है वो हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं है. 6th वन, इंडिया इज सराउंडेड बाय डैश वाटर बॉडीज. इंडिया जो है वो कवर्ड विथ 3 वाटर बॉडीज. सो इसको क्या कहते हैं? इसको हम पेनिनसुला कहते हैं. 3 साइड वाटर बॉडीज है. ओके, ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हो गया जो MCQ में. आप इसको भी अच्छे से पढ़ लो. एंड इन योर chapter number 1 also thoroughly you have to understand the topic and you have to able to write any kind of answer in that chapter. Okay, so let's move to our next chapter, that is our chapter number 2. In page number 13 it is northern mountains. जो नॉर्थ में हमको क्या देखने के मिलता है? इंडिया में माउंटेन्स है, उसको क्या कहते हैं? हिमालयन. ये हमारा इंडिया का वॉल जैसा है. जो चाइना से हमारा इंडिया को सेपरेट करता है वो है हिमालयास, वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स. ओके, हमारा जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे कि फिजिकल डिविजन्स क्या क्या होता है. उस चैप्टर में जो फिजिकल डिवीजन जो क्या होता है, नेचुरल फीचर्स क्या होता है, उसके बारे में हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला था कि 5 तरह का जो होता है मेनली वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, सदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एंड द वेस्टर्न डेजर्ट. जो इसमें इस चैप्टर नंबर 2 में हम अंडरस्टैंड किए थे कि एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स. आपको ये पिक्चर में देख सकते हो आप, कहाँ है वो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हिमालयन रेंज कहाँ है. यस, जो रेंज होता है वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, उसको रेंज कहते हैं. पीक मतलब एक ही जो पॉइंट होता है उसको पीक कहते हैं. लेकिन माउंटेन रेंज मतलब क्या है? पूरा माउंटेन्स का जो बंडल है उसको रेंज कहते हैं. ओके, हाँ, जो हमारा हिमालयाज है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है. वो कंपेयर करते हैं दूसरे माउंटेन से, तो ये माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है. यंग फोल्ड मतलब न्यू है, न्यूली बनाया हुआ है. जो दूसरा माउंटेन से कंपेयर करते हैं तो ये नया है, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. ओके, सो इसके बारे में हम क्या क्या पढ़े थे इस चैप्टर में. यंग फोल्ड माउंटेन है जो हिमालयन रेंज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. जो इधर से जो जम्मू कश्मीर जो है उधर से आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, उधर तक जो इट लाइज बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश.
सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रे कलर का जो शेड है वो पूरा हिमालयन रेंज है। इसका वेस्ट ईस्ट जो है वो एक्सटेंट है 2500 किलोमीटर्स। वेड्थ जो है उसका वेड्थ 160 to 450 किलोमीटर्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर की साइड जो है वो वेड्थ ज़्यादा है, जो अरुणाचल प्रदेश तक आते हैं तो उसका वेड्थ कम हो रहा है। ऐसा पूरा एक ही तरह में का नहीं है, जो वेड्थ जो है वो कम होते जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के साइड। ओके, ये जो है हिमालयन रेंज जो नदर्न माउंटेन्स, वो है चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर जैसा है। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, it is the highest mountain range, not peak, it is a range. okay, the mountain का जो बहुत सारा माउंटेन्स पीक्स होता है उसको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। सो अनदर रेंज ऑफ माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर इज द कराकोरम रेंज। हमारा इंडिया में कराकोरम रेंज जो है वो दूसरा माउंटेन रेंज होता है। कराकोरम रेंज जो हिमालयन रेंज नहीं है वो, उसमें K2 कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, उसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 वो हाईएस्ट पीक है। ये तो इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सा है कराकोरम रेंज से, वो है K2। लेकिन हमारा जो हिमालयन रेंज में होता है वो पीक, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज द which one, you know that, right? Kanchenjunga. It is in Himalayan range, but in India highest mountain range is from Karakoram range. Karakoram range से mountain peak जो है वो highest mountain peak है वो K2 है, लेकिन हिमालयन रेंज जो है उसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है, कांचनजुंगा है। यू अंडरस्टूड, राइट? आपको ये डिफरेंस पता चला? यस, कराकोरम रेंज जो है वो हिमालयन रेंज नहीं है। कराकोरम रेंज से K2 है वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। ओके, बट फ्रॉम हिमालयन रेंज कांचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक in India. But you know that highest peak in the world, that is Mount Everest, it is in Nepal, not in India. Okay, you have to understand this difference. Okay, so in our this Himalayan range, you have to understand that three ranges are there, three parallel ranges are there. डिफरेंट हाइट्स में जो है उसको हिमाद्री, हिमाचल रेंज एंड शिवालिक रेंज कहते हैं। फर्स्ट वन इज हिमाद्री, जो फर्स्ट रेंज को हिमाद्री कहते हैं, सेकेंड रेंज को हिमाचल रेंज कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द शिवालिक हिल्स। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस three ranges, then you can easily understand the difference of these three ranges. Okay, you can see in this picture Karakoram range, right? It is not Himalayan range, it is another one called Karakoram range. इसमें जो K2 है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन इंडिया, लेकिन वो हमारा जो माउंटेन है हिमालयन माउंटेन, हिमालयन रेंज, उसका पीक नहीं है। सो हमारा इंडिया में जो पीक है, हाईएस्ट पीक फ्रॉम हिमालयन रेंज, ये वो है वो कांचनजुंगा। ओके, यू अंडरस्टूड, राइट? ओके, देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज 3 parallel ranges of Himalayan range. They are Himadri, Himachal and Shivalik. The Himadri, इसको ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं, उसको फर्स्ट रेंज कहते हैं, वो नदर्न मोस्ट रेंज होता है। ओके, इट विल बी द
northernmost range of the Himalayas. वो हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसमें. ओके, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जो 1, 2, 3 है वो फर्स्ट वन ग्रेट हिमालय दैट इज द हिमाद्री रीजन, एंड सेकेंड वन लेसर हिमालयास जो है वो हिमाचल रेंज है, एंड थर्ड वन शिवालिक हिल्स, शिवालिक रीजन होता है हिमालयन रेंज में. तो 3 चीज़ होता है जो पैरेलल रेंजेस है. पैरेलली इट विल बी पैरेलल रेंजेस, दे विल नॉट टच ईच अदर. ओके, इसको क्या कहते हैं? पैरेलल रेंजेस है वो है ग्रेट हिमालय, वो उसको हिमाद्री भी कहते हैं. सेकेंड वन लेसर हिमालय, उसको हिमाचल रेंज कहते हैं. थर्ड वन शिवालिक जो लोअर हिमालयास कहते हैं. ओके, यू हैव अंडरस्टूड दिस राइट. हम एक एक करके देखे थे कि हिमाद्री क्या होता है, कैसे होता है, एंड हिमाचल रेंज क्या होता है, शिवालिक रेंज क्या होता है, इसके बारे में हम देखे थे. यस, वी विल सी. हिमाद्री रेंज में है वो फर्स्ट रेंज होता है, उसको ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं. एंड एवरेज हाइट इज 6000 meters. Average height is 6000 meters. And the highest peak of this range is the Mount Everest. It is in Nepal, located in Nepal. Okay, it is not in India, it is in Nepal. But highest peak of this range, highest peak of our Himadri range is Mount Everest. Height of Mount Everest is 8850 meter. Approximately, जो एग्जैक्ट नहीं मेजर किया है उसको, 8850 meters approximately. Okay, and first person to scale Mount Everest, who is the first person to scale this Mount Everest? वो है तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल. नेपाल से तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड. दे बोथ वेंट टुगेदर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. इट इज 1953 में, 1953 में. ओके, सो इस रेंज जो है माउंट एवरेस्ट ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड. ओके, द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया, नॉट इन नेपाल, इन इंडिया from Himalayan range is the Mount Kanchenjunga in Sikkim. It is in Sikkim. सिक्किम में कांचनजुंगा, इट इज़ द हाईएस्ट पीक फ्रॉम हिमालयन रेंज इन इंडिया. ओके, एंड ये जो हिमालयन रेंज है, जो हिमाद्री है, वो पूरा ईयर जो है वो कवर्ड विथ स्नोफॉल होता है उस रीजन में, जो पूरा आइस से भरा हुआ होता है. ओके, हिमाद्री रीजन में ग्लेशियर्स होता है. जो ग्लेशियर्स क्या होता है? रिवर्स ऑफ आइस एंड स्नो के जो बर्फ़ के जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है वो स्लोली मेल्ट होता है, उसके वजह से जो रिवर फ्लो होता है वो ग्लेशियर रिवर कहते हैं. ओके, वो आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ? ग्लेशियर रिवर्स इन हिमाद्री रीजन, हिमाद्री रेंज में होता है. ये ग्लेशियर रिवर जो है वो पेरानियल रिवर होता है. पेरानियल मतलब पूरा ईयर में जो खाली नहीं होता है. ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, उसको पेरानियल रिवर कहते हैं, जो पेरेनियल रिवर होता है. ओके, मेन glaciers are Gangotri and Yamunotri, and main rivers from that glaciers are Ganga and Yamuna, originates from these glaciers. Okay, so हिमाद्री रीजन में जो बहुत सारा नदियाँ जो है वो ओरिजिनेट होता है. Okay, it is about हिमाद्री, the first range, the ग्रेटर रेंज, मतलब ग्रेट हिमालयास को क्या कहते हैं? हिमाद्री. उसके बारे में हमको पता चला. इसमें माउंट एवरेस्ट होता है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज 8850 meters approximately. Okay, so next we will see
the second range is Himachal range. वो सेकेंड रेंज होता है हिमाचल रेंज और द मिडल हिमालयाज, उसको मिडल हिमालयाज भी कहते हैं. वो हिमाद्री आपको पता है 1 and 2 3 है, वो इन बिटवीन 1 and 3 में है. जो 1 and 3 के मिडल में लेसर हिमालया है. द हिमाचल रेंज ए मिडल में है. यस, it is parallel to the Himadri, but it comparatively we can see the height is lesser. The height of that ranges are lesser than Himadri ranges. Okay, the height will be very less than Himadri range. Many hill stations are there in Himachal range. Many hill stations are there. You can say Shimla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, ये सब जो हिमाचल रेंज में ही हैं. जो हिल स्टेशंस होता है वो ज़्यादा होता है हिमाचल रेंज में. एंड वैलीज़ क्या होता है? प्लेन एरिया इन माउंटेन्स. माउंटेन रीजन में प्लेन एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं. वो भी इस रीजन में ज़्यादा है. कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कंगरा वैली, ये सब जो हिमाचल रेंज में होता है. हिमालयन रेंज का जो पैरेलल हिमाद्री रेंज एंड हिमाचल रेंज जो है वो हिमाचल रेंज में कौन सा होता वैलीज होता है? कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कंगरा वैली भी है. ओके, एंड माउंटेन पासेस ऑल्सो आर देयर इन हिमाचल रेंज. हिमाचल रेंज में जो माउंटेन पासेस होता है, इन दैट पासेस वी कैन यूज़ फॉर ट्रेडिंग. जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, जो उसको पास कहते हैं. उस जो पास के थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, उसको पास कहते हैं. जो लोकल लैंग्वेज में उसको ला कहते हैं. ला, LA, ला कहते हैं. जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है वो है नथुला एंड शिपकिला. ओके, जो हिमाचल रेंज का इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको पता चला, राइट. एंड द नेक्स्ट वन, आउटर हिमालयाज और लोअर हिमालयाज, उसको शिवालिक कहते हैं. शिवालिक हिल्स, उसको क्या कहते हैं? आउटर हिमालयाज और लोअर हिमालयाज. जो शिवालिक है 3 नंबर में है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. इन द लास्ट जो फर्स्ट वन आता है हिमाद्री, एंड द सेकेंड वन हिमाचल, एंड थर्ड वन शिवालिक हिल्स, शिवालिक रेंज. इस रीजन जो है वो सदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. हिमालय का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, साउथ में है, एंड लोवेस्ट रेंज है जो हाइट में कम है. एंड द स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स. जो शिवालिक हिल्स होता है उसका स्लोप में जो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा है. इसमें जो वैरायटी ऑफ वाइल्ड एलिमेंट्स रहता है. एंड इसमें फॉरेस्ट एरिया जो होता है उसमें क्या होता है? ट्रीज ज़्यादा होता है. आपको पता है माउंटेन फॉरेस्ट एरिया इस रीजन में ज़्यादा है. शिवालिक हिल्स रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है. ओके, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक इज द इम्पोर्टेंट parallel ranges of Himalayan range. You have understood, right? About these 3 parallel ranges. They are the Himadri. Himadri को क्या कहते हैं? Great Himalayas भी कहते हैं. And Himachal range उसको Middle Himalayas कहते हैं. The Shivalik hills को Outer Himalayas और Lower Himalayas कहते हैं. Yes? Okay. So you will be having many questions regarding these three ranges. Like if I will ask
what is the what we call for Himachal range, उसको क्या कहते हैं? The option like Great Himalayas, Outer Himalayas, Lower Himalayas and Middle Himalayas. Which one is the right? Himachal range is called Middle Himalayas. ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो be ready and be prepare for the PA1 exam. Inside questions also can come. Okay, so next thing is importance of the Himalayas. हिमालय का importance क्या होता है वो हम देखते हैं. आपको इस पिक्चर में देख रहे हो कि द हिमाद्री रेंज. ओके, ये हिमाद्री रेंज आपको इस पिक्चर में है. एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयास. हिमालयस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारा इंडिया को. नेबरिंग कंट्रीज जो है वो नदर्न बॉर्डर है एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज. नेबरिंग कंट्रीज जो होता है चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब, उससे जो हमारा इंडिया को प्रोटेक्ट करता है कि दूसरों के जो कोई प्रॉब्लम होता है, कोई हमारे लिए लड़ने के लिए आता है, उससे हमको बचाते हैं. ओके, ये बूंद जैसा होता है. बूंद मतलब वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो अलग नहीं हो सकता, ऐसा बूंद जैसा है. ये नेचुरल बाउंड्री है. जो नेचुरल फीचर है आपको पता है, फिजिकल फीचर है, ये नेचुरल बाउंड्री होता है इंडिया में. यस, एंड दे विल चेक मानसून विंड्स एंड कॉज रेन इन द एंटायर नदर्न प्लेन्स. हमारा जो इंडिया में जो मानसून आता है उसको स्टॉप करता है. जो हमारे इंडिया से बाहर जाने के लिए जो ट्राई करता है विंड्स, उसको जो स्टॉप करता है एंड हमारा जो इंडिया में रेनफॉल होने के लिए मानसून की वजह से जो हेल्प कर सकता है. इफ वी could not have any ranges like Himalayan ranges, any one of them these ranges, then it will be desert. हमारा इंडिया जो है वो डेजर्ट हो सकता है क्योंकि पूरा जो मानसून विंड जो आता है वो इंडिया से बाहर निकल जाता है एंड इंडिया विल बी लाइक अ डेजर्ट. द रेनफॉल विल नॉट बी देयर एंड आवर सॉइल विल नॉट बी फर्टाइल एंड without Himadri and Shivalik ranges there will not be any condition of glacier rivers. perennial river नहीं होता है, इसकी वजह से जो plain area fertile नहीं होता है, सब प्रॉब्लम हो जाता है. एंटायर नदर्न प्लेन एरिया में मानसून विंड की वजह से क्या आता है? अच्छे से रेन आता है, रेनफॉल होता है, उसकी वजह से हमको अच्छे से क्रॉप्स मिल जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द माउंटेन रेंजेस विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड्स. जो आता है सेंट्रल एशिया से हमारे साइड में, साउथ साइड में, उसको प्रोटेक्ट करता है. जो आइस कोल्ड विंड को जो ये रेंजेस है वो स्टॉप कर देता है एंड इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स. इसकी वजह से जो क्लाइमेट है हमारा इंडिया में वो अफेक्ट होता है. जो हिमालयन रेंज है उसकी वजह से, जो माउंटेन रेंजेस है उसकी वजह से जो इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंजेस होता है. ओके, हमारा जो नदियां हैं, जो रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी का जो ये सब गंगा का सब रिवर्स होता है, जो वो क्या है? घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, ये सब रिवर है वो ग्लेशियर ऑफ द हिमालयास. जो ग्लेशियर होता है, आइस एंड स्नो होता है, उसके ही originated from glacier rivers. So we can get throughout the year the rivers flows throughout the year.
That's why we can easily get water from it. Okay. And this ranges, Himalayan ranges will be थिक फॉरेस्ट, जो शिवालिक हिल्स है उसमें थिक फॉरेस्ट रीजन है, उस एरिया में जो वुड मिलता है हमारे यूज़ के लिए, टिम्बर मिलता है, मेडिसिनल हर्ब्स मिलता है, इट विल हेल्प एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, वाइल्ड एनिमल्स के जो हार्मफुल होता है उससे भी बच सकते हैं जो रेंज के वजह से. यस, दिस ऑल द थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम हिमालयास. हिमालया से हमको ये सब हेल्प होता है. यस, you have understood this topic, right? Try to read the chapter and understand the topic and read multiple choice questions and study that and fill in the blanks, true or false, match the columns. ये सब अब आपके बुक में है 16 and 17 पेज में. राइटिंग जोन भी है, वो सब आपको स्टडी करना है. एंड what you have to do, you have to see extra MCQ questions also. I will show it to you. Okay. Yes, ये सब जो questions है extra MCQ questions आपको लिखना होगा आपका FNB में. Okay, write in FNB. जो फर्स्ट लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर है उसका भी लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड चैप्टर नंबर 2 का भी लिखना है. ओके, I will share this PDF with you, then you have to write it and study. First one, in which range we can see many hill stations? हमको पता है ये हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज में जो हमको many hill stations देखने के लिए मिलता है. And second one, the Himalayas are which type of mountains? They are block mountains नहीं है, volcanic mountain नहीं है, old fold नहीं है, ये young fold mountain है जो comparatively new है. Third one, where the Himalayas lie? ये नॉर्थ में है, हमारा जो इंडिया में नॉर्थ में हिमालय होता है. एंड फोर्थ वन, गंगोत्री इज ए पीक, वैली, माउंटेन रेंज और ग्लेशियर. इट इज़ अ ग्लेशियर रिवर. एंड फिफ्थ वन, कांचनजुंगा इज़ अ हिल, रिवर, माउंटेन पीक और पास. ये है माउंटेन पीक जो हिमालयन रेंज का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारा इंडिया में, वो है कांचनजुंगा. ये माउंटेन पीक है. ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, स्टडी करना है. ओके, जो हमारा सेकेंड चैप्टर था माउंटेन रेंज, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसमें हम देखा फिजिकल डिवीजन में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये नॉर्थ साइड में है हमारा इंडिया में, एंड इसमें 3 पैरेलल रेंजेस है, वो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमाद्री. द माउंट एवरेस्ट इज इन दिस रेंज एंड हाईएस्ट पीक in the world, that is Mount Everest, 8,850 meter. And the second range is the Himachal or Middle Himalayas, and the southernmost and lowest range is the Shivalik. They are perennial river का जो Himalayas है वो perennial river का source है, and it protect us from being a desert. This Himalayas जो है वो हमारा इंडिया को बचाया है डेजर्ट होते हुए. एंड द हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं. ये कंपेयर करते हुए दूसरे को ये कंपेरेटिवली न्यू है. ओके, सो ये था हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड स्टडी फॉर PA1 एग्जाम्स एंड डू योर होमवर्क. बाय बाय, टेक केयर.